Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your girl Lisa Johar और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही क्या होगा. तो आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो all the complete information that you all need to become a cabin crew right after your 12th. Yes, you heard it right. I'm going to share all the necessary informations. So, if you're interested to become a cabin crew and you don't have much clarity on this topic, then you really need to watch this video till the end and please be attentive because the information I'm going to share with you all is going to be important. क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू दैट आई एम अज्यूमिंग कि यू ऑल आर वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड यू हैव क्लैरिटी अबाउट इट राइट. सो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए फिर आप लेजीनेस शो नहीं कर सकते ना. You have to be attentive and you have to think like okay, you are already a cabin crew, and if you will think that like that, you will be able to realize that you have to grow, you have to act, and you have to behave like the people you want to be like, right? So without giving unnecessary gyan, let's continue the video and let's start with the main topic. So yeah, basically, to become a cabin crew in India, if I speak about domestic airlines, which are like mainly nowadays is Indigo, Air India, Vistara is not anymore, like it's just not going to fly as Vistara. It has merged with Air India, and SpiceJet. Is there any other airline? Yeah, like Akasa. There are many. I mean, I hope you all know like what are all the airlines that fly in India. And one more thing is that जब आप पहले ज्वाइन करते हो ना तो उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि ओके, दिस इज़ द एयरलाइन आई वांट टू वर्क फॉर दिस एयरलाइन, राइट. उससे क्या होगा कि आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी क्योंकि हर एयरलाइन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है. लाइक नॉट नेसेसरी. अब हम डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, लाइक थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे. इफ़ यू आर स्पीकिंग अबाउट डोमेस्टिक एयरलाइन, देन बहुत सारी एयरलाइन जो भी डोमेस्टिक फ्लाई करती हैं उनका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है. बट इफ़ वी स्पीक अबाउट इंटरनेशनल एयरलाइन लाइक सिंगापुर एयरलाइन, कतार, एतिहाद, एमिरेट्स, उनका क्राइटेरिया में थोड़ा डिफरेंस होता है. अब कुछ एयरलाइन ग्रेजुएशन मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती हैं. फॉर एग्जांपल सिंगापुर, for if you're applying for Singapore airline, graduation is mandatory. But if you're applying for Qatar or any Middle Eastern airline, then graduation is not mandatory at all. So you need to understand the criteria, the requirements of the airline, so that you have the clarity. And अगर आपका पहले से अगर आपको सिंगापुर एयरलाइन ज्वाइन करना है और आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो it will be a problem in your recruitment. I hope you're understanding my point, right? So if you are thinking about a dream airline and you want to apply for it, you want to crack its interview, then you need to decide it earlier. And if I speak about domestic airline, then mostly airlines का जो criteria है वो है आपको 18 प्लस होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लाइक योर कम्युनिकेशन, और इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, आधार कार्ड, passport, PAN card. These are the some mandatory documents that you need to become a cabin crew in India. So, अगर आपने like complete कर ली अपनी 12th and now you are thinking to become a cabin crew, so what are the necessary steps you need to take? Do you need to join an institute? Clear answer is no. I will make a detailed video on this topic if you want, but right now, in simple language, in simple words, no. Okay. So what you need to do is don't join any institute, work on yourself. You can work on yourself at your comfort of your own home. Like seriously, I have done this. मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली एयरलाइंस के इंटरव्यूज दिए थे. सो don't join any institute. I don't know why I'm repeating this is so many times, but I think that so many people are there wasting their time and their money for nothing. So don't do that. I'm just trying to give you information which is important. I think that's why I'm repeating it so many times. So जब आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको घर पे बैठकर अपने आप पर काम करना है तो आप कैसे करोगे? दैट माइट बी द क्वेश्चन दैट कमिंग इन योर माइंड.
See, there are a lot of videos, there are a lot of resources that you can use online. बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं इफ़ यू थिंक दैट्स अ वीक पॉइंट, क्योंकि अब यू नो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हर जगह आपको इंग्लिश काम आएगी, वेदर इट्स एग्जाम्स, वेदर इट्स कॉर्पोरेट जॉब, वेदर इट्स एविएशन, हर जगह इंग्लिश मैंडेटरी है, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो कि हर हर एक कंट्री में हर लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो एक कॉमन लैंग्वेज है हर किसी के बीच में, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश से आपकी एजुकेशन कोई जज कर रहा है एविएशन में, बट इट इज़ जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अनडिजर्विंग है। जस्ट सिट एट योर होम, टेक एटलीस्ट 2 or 3 minutes, 3 minutes, no, months, for your own self, and just practice. And I'm not even going to say just watch videos. No, it's not going to help. Just watching someone speaking English is not going to help you out. You need to take action. You need to speak. You need to speak with anyone. Maybe if you are not able to find anyone, then खुद से बात कर लो मिरर में देख के. See, I have done that. मतलब I'm not feeling shy to say this कि मैंने भी खुद से बात की है मिरर में. And sometimes it was funny for my family members, like, oh, she's speaking to her own self. But yeah, you have to do it sometimes, right? For your own good. So don't be embarrassed to do this kind of things. Do it. If you want to make your dream come true, just do it. और इंग्लिश के बाद आपको करना है अपना कम्युनिकेशन. सी, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है. यू शुड बी एबल टू टॉक टू एनीवन. अब वो पीपल फॉर इंट्रोवर्ट ना, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दो इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, बट अब इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ये इशू होता है ना कि दे जस्ट डोंट लाइक टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, बट इन दिस प्रोफेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नॉट फील, you should not, there should not be any hesitation in you if you want to initiate a conversation with someone, because when you're in aviation ना, तो आपको बहुत सारे लोगों को ब्रीफिंग्स देनी होती है, तो उसके लिए तो आपको खुद ही बोलना पड़ेगा. वो इंसान अपने आप थोड़ा चल कर आएगा कि मुझे ब्रीफिंग्स हो, बिकॉज ब्रीफिंग्स इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड फॉर दैट यू हैव टू अप्रोच दैट पर्सन, राइट? तो देयर शुड बी नॉट अ पर्सन हु इज शाय, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है पैसेंजर के साथ. तो ऑफकोर्स एयरलाइन नीड पर्सन जो कि बहुत कंफर्टेबल हो लोगों से बात करने के लिए, ठीक है? एंड कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सी, यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, जैसे कि जो भी आपके नेबर में हैं, मे बी उनके साथ, या जिनसे आप रिलेटिव्स हैं बहुत सारे, उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए. स्मॉल टॉक कीजिए किसी भी रैंडम टॉपिक पर, तो इट विल हेल्प यू आउट. ओके, एंड यू कैन वॉच मेनी वीडियोज अगेन. देयर आर सो मच रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस, सो जस्ट मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड देन व्हाट एल्स यू नीड टू डू? 12th पास कर ली है, इंग्लिश अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है, तो फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हो यार? गो गिव इंटरव्यू. डोंट वेट. ओके, जस्ट डोंट वेट. डोंट थिंक कि भाई मेरे हाथ पे स्कार है, मेरे पैर में स्कार है, मेरे शक्ल पे स्कार है. जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट. अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं वो हैं, और आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग भी आनी चाहिए. या आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट ग्रूमिंग. ग्रूमिंग इज ऑल्सो लिटिल इम्पॉर्टेंट, बट आई वोंट से लाइक इट प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन ना एचआर को पता होता है कि भाई जो बंदा आ रहा है उसको मे बी इतना अच्छे से ना आता हो ग्रूमिंग करना, बिकॉज द पर्सन वॉन्ट्स टू कम इन एविएशन. ही और शी इज नॉट ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ एविएशन, राइट? So they understand, but still I think some airlines are very strict about grooming and they check it even in interview. So for that you need to learn basic makeup, how to make bun, and be in formals. Please don't wear casual clothes. It just, I don't know, मतलब मैंने अपने इंटरव्यू पे देखा है कि बहुत सारी लड़कियां कैजुअल क्लोथ्स में आ जाती हैं, एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक उन्हें इतना अच्छा जज नहीं करते जितना और लड़कियां जज कर रही होती हैं, क्योंकि इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल, एंड आई डोंट नो व्हाई दे डू कम दैट वे. सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर इंटरव्यू, भाई एक शर्ट ले लो, एक क्या कहते हैं उसे, ट्राउज़र ले लो, आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए. और तो कुछ नहीं मांग रहे ना, वो शर्ट, ट्राउज़र और एक अच्छी सी वॉच, थोड़े से छोटे छोटे वाले इयररिंग्स, दैट्स इट, दैट्स इट. ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब एक प्रेजेंटेबल दिखो, और ऐसा लगना चाहिए कि या यू आर डिटरमाइंड, यू आर पैशनेट
टू गेट दिस जॉब। ऐसा एकदम जब तुम लोग कैजुअल्स में आते हो ना तो वो इम्प्रेशन पड़ता ही नहीं है एचआर पे, ठीक है? एचआर को लगता है कि मतलब ये लोग चलते फिरते ऐसे कहीं जा रहे थे, हम इंटरव्यू देने आ गए हैं। I don't think anybody wants to create that kind of impression. So I'm just telling you कि थोड़ा सा groom होकर जाओ. It will create a good impression and it will help you to crack the interview. Okay. So these three things are important and बाकी सब are all good. और ज़्यादा worry करने का ज़रूरत नहीं है. Don't be nervous. ठीक है, बिल्कुल मत डरो, कोई बात नहीं, कहीं कमी होगी तो एचआर विल टेल यू दैट, डोंट बी नर्वस, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड कि जब भी हम इंटरव्यू पे जाते हैं तो नर्वस तो होते ही हैं। उसके साथ डील कैसे कर सकते हो? सी, तुम्हें जितनी भी नर्वसनेस है ना उसे अंदर रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर उसका इफेक्ट मत पड़ने दो, ठीक है? अपने आप स्ट्रेट बैठो, अपना पॉस्चर मेंटेन करो और इट विल जस्ट शो अदर पीपल दैट यू आर कॉन्फिडेंट। इट डजंट मैटर व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, so just pretend. Okay, that's the thing that going to help you, trust me. It might sound funny but it's just what helps people. I have seen many people who feel nervous, anxious inside, but they act confident because what you're feeling inside nobody's going to know. All they're going to judge you is from your outer appearance. So look cute, look beautiful and dress properly. और उसके बाद द लास्ट टिप इज कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऑलवेज कीप अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा वरी करने का कुछ है ही नहीं इस प्रोसेस में। जब आपको लगे कि आप 18+ हो गए हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है, इंग्लिश फ्लुएंट हो गई है, आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ग्रूमिंग थोड़ी बहुत आती है एंड यू थिंक यू विल बी एबल टू radiate that positive energy and you'll be able to look confident, even doesn't matter whatever you're feeling inside, go for interview, my advice. And trust me, you won't regret, क्योंकि अगर कोई कमी होगी they will tell you, थोड़ा बहुत वर्क करना, दोबारा इंटरव्यू दे जाना and you will crack it यार. Just don't overthink, don't keep sitting at your home and um, just don't do that. I have been through that stage and that's why I'm telling you कि कोई बात नहीं, 10 बार रिजेक्शन हो रहा है, 5 बार रिजेक्शन हो रहा है, जस्ट डोंट ओवर थिंक अबाउट दोज रिजेक्शंस, कीप गिविंग इंटरव्यूज, दैट्स द ओनली थिंग विच विल help you to get through the situation and it will make you succeed. So why to worry? Just think positive and everything will happen positive. And that's all for today's video. Just let me know if you want video on any other topic because I really want to help you out. I was very depressed for a year. I was feeling anxious just like every other candidate who faced a lot of rejections. So I know how you all feel when you face rejections every time, even after you're improving. So just let me know, okay? I'll make a video for you. तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा हंसते रहें, ठीक है? बाय बाय।